In the last module, we have discussed the epimers and some of the brief description of some of the monosaccharides. And in this module, we will discuss remaining two of the hexoses, which is D-galactose and D-fructose. And then we will discuss the properties of monosaccharide. Number one is the D-galactose. It occurs as a constituent of milk, lactose. मिल्क के अंदर दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, वन इज ग्लैक्टोज एंड अदर इज ग्लूकोज. It is an epimer of D-glucose as we have discussed in the last lecture or the last module, and the epimer is that which differ only in one carbon atom configuration. So it is epimer at C4 and it is readily metabolized to glucose. It is synthesized in the mammary glands for synthesis of lactose in the milk. It is also a constituent of glycolipids and glycoproteins. We have already briefly discussed the hereditary galactosemia, in which the galactose, which is a part of lactose which is present in the milk, cannot be metabolized due to hereditary deficiency of enzyme, which results in failure of the metabolization of galactose and which leads to cataract and other clinical symptoms. D-fructose, as we know, it is a keto sugar and it is mainly present in the fresh fruits and honey. It is the sweetest sugar which is present in the nature. Also occurs as a constituent of sucrose. Sucrose में एक molecule, sucrose is again a disaccharide. We will discuss when we will discuss the disaccharides. एक इसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और दूसरा इसके अंदर फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है. डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, वो रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे, जबकि डी फ्रुक्टोज विच इज प्रेजेंट इन नेचर इज मोस्टली लीवो रोटेटरी. इट मीन्स कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा. Hence it is also called levolose. It is present in seminal fluid and which is required for the utilization of energy by the sperms. Readily metabolized via glucose. ग्लूकोज के थ्रू भी ये मेटाबोलाइज हो जाता है और डायरेक्टली भी इन दी ग्लाइकोलिसिस पाथवे. हेरेडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, जिस तरह हेरेडिटरी ग्लैक्टोसीमिया था, ये भी एक हेरेडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है एंड इट लीड्स टू accumulation of fructose and many clinical symptoms. Now we will discuss the different properties of monosaccharide. One is the oxidation. Oxidation 3 different levels पे हो सकती है. For example, C1 पे, C6 पे और C1 और C6 पे, दोनों पे at a time in case of hexoses. The oxidation of carbonyl, which is aldehyde group of glucose, is converted into COOH, which is carboxyl group, and produces gluconic acid. अगर C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH में, तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. अदर एल्डोजेस यील्ड अदर एल्डोनिक एसिड्स. ये डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में फ्री कार्बन एटम नहीं होता. इसकी वजह से ये रिंग स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है, इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइजेबल, इसलिए कि इसमें फ्री ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होता. जबकि लीनियर स्ट्रक्चर में ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है जो कि ऑक्सीडाइजेबल है. ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है एंड एन अदर ऑक्सीजन इज एडेड विच फॉर्म दी ग्लूकोनिक एसिड. और ये आयोनिक फॉर्म में हो तो इसको डी ग्लूकोनेट कहते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एट द अदर एंड ऑफ द कार्बन
इन केस जैसे हमने बोला कि हेक्सोसिस में कार्बन एटम नंबर 6 पे अगर ऑक्सीडेशन होगी तो इट इज फॉर्म्स यूरोनिक एसिड. In case of glucose, galactose and mannose, the corresponding uronic acid are formed, which are in case of glucose, glucuronic acid, in case of galactose, galactronic acid, and in case of mannose, mannuronic acid. The carboxylic acid groups of the acetic sugar derivatives आर आयोनाइज्ड एट pH 7. जैसे हमने फुल स्लाइड पे देखा कि आयोनाइज होके ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये pH 7 और न्यूट्रल pH पे आयोनाइज हो जाते हैं और इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एंड देयरफॉर करेक्टली नेम्ड एज कार्बोक्सिलेट्स विच आर ग्लूकोनेट, ग्लैक्टोनेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Both aldonic acid and uronic acid form stable intramolecular ester linkage which are called lactones. जिस तरह उसमें इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूलर में के ग्लूकोज में ईथर लिंकेज बनती थी, यहाँ ईस्टर लिंकेज बनेगी और इंट्रामोलिकुलर की जो साइक्लिक चेन बना देगी और दीज आर कॉल्ड लैक्टोन. In case of glucose, fifth carbon is also known as delta carbon. तो C1 और C5 के दरमियान इंट्रामोलिकुलर जो लिंकेज होगी दिस इज नोन एज डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन एंड दिस ईस्टर लिंकेज इज formed between oxidized form of the C1 which is carboxylic acid and C5 of the glucose molecule. This is the diagrammatic presentation of ester linkage. इसके अंदर एक कार्बन है और उस पे एक साइड पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है जबकि दूसरी साइड पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे अटैच है. अगर ये C1 पे लगा होगा ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल ग्रुप C00 और ये आयोनाइज फॉर्म में होगा तो दिस इज, अगर ये C6 पे लगा होगा तो इट इज कॉल्ड ग्लूक्रोनिक एसिड. So this is the oxidation of glucose at C6 in the ring form of structure and known as glucuronic acid. हमने कहा था कि नेचुरल pH पे ये आयोनाइज हो जाएगा जिस तरह के यहाँ नेगेटिव चार्ज हमें नज़र आ रहा है. ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से आयोनाइज है और इसका नाम हमने कहा चेंज हो गया ग्लूक्रोनिक एसिड से ग्लूक्रोनेट. अगर ये कार्बन एटम नंबर 1 जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो इट इज़ नोन एज ग्लूकोनिक एसिड और इसकी साइक्लाइजेशन अगर होगी और प्रॉपर फॉर्म ऑफ ईस्टर लिंकेज बन जाएगी तो जिसे हमने बोला था ये डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन बन जाएगा जिसके अंदर ये ईस्टर लिंकेज जो है वो आपको यहाँ बनी हुई नज़र आ रही है बिटवीन कार्बन एटम नंबर 5 जिस इज डेल्टा, ये 5 नंबर है ये वाला जो डेल्टा है और बिटवीन 1 कार्बन तो ये डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन कहलाएगा.